Good morning, students. I am Chuan sir from Indo Bharat International Public School. Now, continue my topic for class 11, chapter number 1, set theory. Now, today this chapter will be completed. Now, before it, first we introduce again universal set and power set. एक स्टूडेंट्स की डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, या तो उन्होंने वो वीडियो देखा नहीं है. एक बार फिर भी मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट? यू नो यूनिवर्सल सेट, सपोज वन सेट इज गिवन, देयर आर मेनी एलिमेंट्स आर गिवन इन दिस. सपोज 1 to 10 एलिमेंट्स आर गिवन and some sets are performed by using these elements. We take some elements from this U. Suppose we take 3, 4 and 5. Second set B equal to 7, 8, 9. C is equal to 1, 5, 10 and 9. There are 3 sets are performed from, we take some elements from U. You know this UA is the subset of U, again B is the subset of U and also C is the subset of U. तीनों सेट्स U के सबसेट्स हैं. तो that means for A, B, C this U is called the universal set. एक ऐसा सेट, एक बड़ा सेट जिसमें से जिस सेट में से हम कुछ एलिमेंट्स को लेकर हम कुछ सेट्स को परफॉर्म करते हैं, तो उन सेट्स के लिए वो सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है. तो यहाँ हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल सेट उन्हीं के लिए होगा जो इसके सबसेट्स होंगे. तो एवरी सबसेट ऑफ यू इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द सेट्स. Now 5 is the also subset of U, so 5 is the also U is the also universal for 5. And all elements 1 to 10 means this all elements are given, so this set is also universal for U. So it is the clear meaning of universal. Now next is we introduce the power sets. What is the power set? Power set actually set of sets. कई बार हम एलिमेंट्स को एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं. सपोज वन सेट इज गिवन A. सपोज वी टेक 1, 2, 3. ओनली वी टेक द 3 एलिमेंट्स 1, 2, 3. पावर सेट ऑफ A denoted by P bracket A. Now write the every subset of A. First we write the 5 because 5 is the also subset of A, and this 5 write in the form of a set. Now also 1 is the subset of A, 2 is the subset of A, and also 3 subset of A. Similarly 1, 2 is the subset of A, and 2, 3 is the subset of A, and 1, 3 is the subset of A, and also 1, 2, 3 means every subset, every set is the subset of itself. So this 1, 2, 3 is the also subset of A. Now finally close this set. So how many elements you count? आप इनको काउंट कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 sets are the subset of this set A. So this set is called the power set of A. अगर आप कोई भी यहाँ पे सेट छोड़ देते हैं तो इसका एक तरीका बताता हूँ. The number of power set of this one 2 raised to the power n, where n is the number of elements given in set A. Now here 2 raised to the power, there are 3 elements 1, 2, 3, so power 3, and 2 power 3 is the 8. So that means there are 8 sets are the power sets. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कोई भी सेट नहीं छूटा. That means this is the true. So this is called the power set.
ऐसे ही आप सभी सेट्स के सभी सबसेट्स अगर आप लिखते हैं तो वो पावर सेट कहलाता है। इज क्लियर मीनिंग ऑफ पावर सेट? तो नाउ इट इज द क्लियर मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एंड पावर सेट। ये तो बात हो गई, हम वापस से एक जो कंफ्यूजन था एक स्टूडेंट्स का वो अपन ने दूर किया। तो सभी के लिए एक बार वापस से इट इज द इंट्रोड्यूस एंड रिवाइज द यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट। ओके, एक बार फिर से वापस से अगर कोई डाउट हो तो जरूर लेके आइएगा, मोस्ट वेलकम। नाउ नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज एंड आफ्टर दिस एक्सरसाइज दिस चैप्टर इज द कंप्लीट। इस एक्सरसाइज के साथ में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। एंड दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस एक्सरसाइज we discuss the practical problem for the set theory. Before it, first we introduce the some formula. अगर मैं कुछ formulas लिखता हूँ, suppose number of A union B, number of elements in A union B, that means NA and plus NB, दोनों के एलिमेंट्स को हम प्लस करेंगे। बट हियर दोनों में जो कॉमन है वो दोनों में एक बार वापस से काउंट हो गए और उनको काउंट एक बार ही करना है। तो अपन एक काम करते हैं, इनमें से माइनस कर देते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है उसको माइनस कर दिया। तो दैट मींस फर्स्ट फॉर्मूला इज द एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको बार बार यूज करना है। इसके बेसिस पर हम व्हाट इज देयर, दे आर 1 2 3 4 आर गिवन। अगर 4 में से 3 गिवन हो तो आप फोर्थ पार्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला, सपोज एन ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके अलावा आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं अपन, 3 सेट्स। 3 सेट्स के लिए अगर अपन लेते हैं तो फर्स्ट वी टेक एन ए देन प्लस एन बी देन प्लस एन सी। अब यहां पे कॉमन पार्ट को अपन माइनस करते हैं तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। यहां कॉमन पार्ट को मैंने माइनस कर दिया, लेकिन यहां पे वो एलिमेंट्स भी माइनस हो गए जो तीनों में कॉमन है। तो एक बार फिर से उनको प्लस कर देते हैं। एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी intersection C. This formula is called for n A union B union C. अब बात करते हैं अपन n number of A minus B, difference of A and B. A minus B that means इसमें वो elements हैं जो B में नहीं होने चाहिए, तो B वाले के माइनस कर देते हैं। माइनस n A intersection B, जो दोनों में कॉमन है उसको अपन माइनस कर देते हैं। Similarly, for number of elements in B minus A, यहां अलग हो जाएगा। इस बार B के एलिमेंट्स को काउंट करना है और दोनों में जो कॉमन है उनको अपन माइनस कर देते हैं फिर से। तो ये आपके लिए बन गया फॉर्मूला फॉर डिफरेंस बिटवीन B एंड A। तो देयर आर 4 फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। 8 फॉर्मूलाज को आप चाहे तो लिख सकते हैं और नहीं लिखना चाहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि बुक्स के अंदर ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे फॉर्मूला। ओके, इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे मैं एक्सरसाइज 1.6 को डिस्कस कर रहा हूं। प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जो सोल्व एग्जांपल है वो आप ऑलरेडी बुक्स में आप देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज मैं कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के साथ में अपन यहाँ पर इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट इज द वेरी सिंपल, इफ सेट x and y are two sets such that nx is given, means number of element in set x is equal to 70 and number of element in set y is equal to 23 and number of element in x union y is equal to 38. Now find number of elements in x intersection y. ये आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपको वही यूज करना है, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। दिस इज द गिवन, इज द 38, राइट हियर 38। एन एक्स सिंपल इक्वेशन है,
कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। nx is given 17, now plus ny is 23 and minus nx intersection y, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 38 and is equal to this plus this 10, 2 plus 1 3, 3 plus 1 40 and minus nx intersection y, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए। nx intersection y is equal to 40 minus 38, that is 2. So 2 is the answer for x intersection y. So number of elements in x intersection y is equal to 2. This is the answer. It is very simple. The first question is the complete. So this question is the complete. Now my second question. Second question is given in a group of 400 people. 250 can speak Hindi, 200 can speak English. Now, how many people can speak both Hindi and English? These all questions are also see in your book for the example exercise 1.6. मैंने क्वेश्चन नंबर भी लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड अकॉर्डिंग टू योर बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ टोटल पीपल आपको गिवन है 400. दैट मीन्स राइट फर्स्ट एंड स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, बिकॉज हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई लैंग्वेज तो वो यूज करेगा। तो नाउ हिंदी फॉर एच, हिंदी फॉर एच और इंग्लिश ई फॉर इंग्लिश, मैंने यहाँ पे सिंबल भी वो यूज किए हैं। इज इक्वल टू 400 इज गिवन। नाउ एंड 250 कैन स्पीक हिंदी, दैट मीन्स NH is equal to 250. 200 speak English, that means NE is equal to 200. Now how many people can speak both, means Hindi and English? ये आपको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है, वापस वही क्वेश्चन बन गया। आप चाहें तो उसको अपने आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस क्लियर? मुझे इसको सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं होगी। चलिए तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, वापस से वही फॉर्मूला यूज करना है। H यूनियन E इज इक्वल टू HE प्लस HH माइनस NH इंटरसेक्शन E। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन in a group of 70 people, 37 like coffee. That means number of elements for coffee 30. We take the coffee for C is equal to 37. And group of 70 people, that means total and coffee and then next is the tea. So coffee union tea is equal to 70. In a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, that means and tea is equal to 52. आगे आपको ये भी गिवन है। नाउ टी एंड ईच पर्सन likes at least one of the two drinks, दोनों में से कोई ना कोई वो यूज कर रहा है। दैट मीन 70 आप यहाँ पे ले सकते हैं C यूनियन टी, कॉफी यूनियन टी। एंड फाइनली हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी इंटरसेक्शन टी, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसको एक बार फिर से अपन डिस्कस कर लेते हैं। एंड कॉफी यूनियन टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप यूज करेंगे C प्लस एन टी एंड माइनस एन C इंटरसेक्शन टी। इट इज गिवन दिस इज 70 NC इक्वल टू 37 प्लस NT इक्वल टू 52 एंड माइनस, ये आपको कैलकुलेट करना है C इंटरसेक्शन टी। इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। सो दिस इज द माइनस, द पॉजिटिव n C intersection T and is equal to 37 plus 52. 70 को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ राइट हैंड साइड में, according to use the linear equation in one variable, so it is the minus 70.
2 plus 7, 9, and 5 plus 3. Now 5 plus 3 is the 8. So 89 minus 70. इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए 89. So it is the 19. So 19 people like both drinks, coffee and tea. 19 persons ऐसे हैं जो कॉफी और टी दोनों को लाइक करते हैं. इट इज द फाइनल आंसर. चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट वी टेक द प्रॉब्लम नंबर 7. इसको मैं रब करने जा रहा हूं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. जब तक आप क्वेश्चन नंबर 7 को रीड किया कर सकते हैं अपनी बुक में. क्वेश्चन को समझना जरूरी है और एटलीस्ट सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं. इसमें कोई डिफरेंट मुझे लग नहीं रहा है. क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल. 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस. हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट? इज द वेरी इंपॉर्टेंट. ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन नजर आ रहा है. हाउ मेनी लाइक टेनिस एंड ओनली एंड नॉट क्रिकेट? हाउ मेनी लाइक टेनिस? दो इसमें आपको फाइंड आउट करने हैं. तो यहाँ पे बात करते हैं अपन 65 पीपल. तो फर्स्ट वी टेक नंबर ऑफ क्रिकेट एंड यूनियन टेनिस. दोनों के लिए अपन बात करते हैं 65. 65 पीपल ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को एक साथ लाइक कर रहे हैं. और 40 लाइक क्रिकेट, दैट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स क्रिकेट, ये आपके पास मिलता है 40. एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, दैट मीन्स इस बार आपको गिवन है नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस इज इक्वल टू इज द 10 पर्सन्स. 10 पर्सन्स ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक कर रहे हैं. अब अपन बात करते हैं हाउ मेनी लाइक टेनिस. आपको एक तो फाइंड आउट करना है हाउ मेनी लाइक टेनिस. एक तो ये फाइंड आउट करना है और एक आपको फाइंड करना है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट. क्या मीनिंग हुआ इसका? केवल टेनिस को लाइक कर रहे हैं, क्रिकेट को नहीं. इसका मीनिंग ये हुआ कि टेनिस में से अपन क्रिकेट को माइनस कर देते हैं. ऐसे पर्सन जो टेनिस को लाइक कर रहे हैं जो क्रिकेट को नहीं, जिसमें से क्रिकेट को जो लाइक करने वाले पर्सन है वो माइनस हो जाएंगे. माइनस होने के बाद में वो पर्सन बच जाते हैं जो केवल टेनिस को लाइक कर रहे हैं. और नेक्स्ट लास्ट में अपन आते हैं, बात करते हैं हाउ मेनी लाइक टेनिस. और एक आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टेनिस. अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो आपके पास में ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है 1 2 3. तो इसके अकॉर्डिंग पहले अपन ये फाइंड आउट कर सकते हैं टेनिस की. और टेनिस का अपन कुछ नंबर हमें चाहिए क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर टेनिस अपन यूज करेंगे. फॉर्मूला बताया था मैंने, नंबर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू NA एंड माइनस NA इंटरसेक्शन P. यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे. पहले हमें फाइंड करना हो नंबर ऑफ पर्सन विच आर लाइक टेनिस. सो उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ NC यूनियन T is equal to NC plus NT and minus NC intersection T. Okay, this number is the 65 equal to C 40 and plus T, ये आपको फाइंड आउट करना है इस बार, and minus both are given 10. चलिए स्टार्ट करते हैं. Now 65 equal to 40 minus 10 is 30 plus NT. So what is number of tennis is equal to 30 को इधर शिफ्ट कर लीजिए आप. Now 65 minus 30 is equal to 35. So 35 persons are like tennis. Now find the number of persons like tennis but not like cricket. So what is the formula? इसके लिए मैंने सेपरेट एक फॉर्मूला बताया था NT and minus N C intersection T is equal to, ये आप कैलकुलेट कर चुके हो इक्वेशन नंबर 1 में 35 and माइनस जो दोनों के लिए है वो आपको गिवन है 10. सो माइनस 10 is equal to 25.
It is the answer. Equation number 2. So equation number 1 is the 35% like tennis. इसमें वो भी इंक्लूड है जो टेनिस और क्रिकेट दोनों को लाइक कर रहे हैं, और T minus C means 25% लाइक ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट. इसमें वो पर्सन्स हैं जो केवल टेनिस को लाइक करते हैं लेकिन क्रिकेट को लाइक नहीं कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7. इसको थोड़ा सा मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ. क्वेश्चंस अभी आप ओनली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलिए. एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व एग्जाम्पल और अनसॉल्व एक्सरसाइज के बेसिस पे, और एग्जाम में भी मैं एनसीईआरटी के बेसिस पे ही क्वेश्चंस दूंगा. पेपर भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा. एनसीईआरटी से अभी बाहर नहीं जाना है अभी आपको. फिर भी अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप आर डी शर्मा की बुक यूज़ कर सकते हैं. उसमें और भी आपको इस तरह के कई क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपका कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. एनसीईआरटी में जो है वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस गिवन है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है. आर डी शर्मा में आपके बहुत क्वेश्चन मिलेंगे. जितने क्वेश्चंस करोगे, मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. हम क्वेश्चन जितने ज़्यादा करते हैं आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता है. ये आपके लिए, अगर आप आगे चलकर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं 12th क्लास में, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने होंगे. तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज एंड फॉर दिस चैप्टर. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज माय 8th क्वेश्चन. नाउ 8th क्वेश्चन इज आल्सो, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट है. ये डिफरेंट क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन जो है सेम थे इसलिए मैंने लिए नहीं. वो आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं. डाउट्स हो तो लेके आइएगा. इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n नंबर ऑफ फ्रेंच. फ्रेंच के लिए मैं f यूज कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे सिंबल अल्फाबेट जो है ABCD भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ. f इक्वल टू, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, 50. And next 20 speak Spanish. So that means number of Spanish is equal to 20. Now and 10 people speak both Spanish and French. That means common. French intersection S is equal to 10 people. 10 पीपल ऐसे हैं जो फ्रेंच भी बोलते हैं और स्पेनिश भी बोलते हैं. आगे चलते हैं अपन. हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस. ये डिफरेंट क्वेश्चन क्यों हुआ? यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है एटलीस्ट. क्या मीनिंग हुआ इस एटलीस्ट का? यहाँ एटलीस्ट का मीनिंग ये हुआ कि कम से कम एक लैंग्वेज वो बोलता है, या तो वो स्पेनिश या वो फ्रेंच या दोनों. इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको कंबाइंड कंप्लीट आपको फाइंड आउट करना है. दिस टाइम फाइंड द फ्रेंच यूनियन स्पेनिश. ये आपको कैलकुलेट करना है. मीन्स F यूनियन S, ये आपको कैलकुलेट करना है. इसमें यही इसमें इंपॉर्टेंट है. तो नाउ NF यूनियन S, ये फॉर्मूला है NF प्लस NS माइनस NF इंटरसेक्शन S. स्टार्ट करते हैं. F आपको गिवन है 50 प्लस NS इज 20 माइनस ये आपको गिवन है 10. बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया. 50 प्लस 20 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 60. 60 पीपल्स आर स्पीक फ्रेंच एंड स्पेनिश बोथ. That means it is the union. इस बार आपने यूनियन फाइंड किया. तो जब भी क्वेश्चंस के अंदर जहां एटलीस्ट वर्ड यूज आता है, तो एटलीस्ट का यहाँ मीनिंग जो हो जाता है वो यूनियन है. ये आपको ध्यान रखना है. ओके. तो एटलीस्ट का मतलब हो गया A यूनियन B. तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8. इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लास्ट 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एक्सरसाइज 1.6. इसके साथ इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करता हूं आज, और ये चैप्टर कंप्लीट होता है. इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड डे.